Good morning, students. So today in data structure and algorithm lab, we will be going to discuss stack data structure. मेरे ख्याल से आप लोगों ने फर्स्ट टाइम आप लोग stack data structure पढ़ने जा रहे हैं. तो first of all, we will see what you mean by the stack. First, we'll go with the theory part of the stack, and then we will see the implementation of the stack by using an array. Fine. So let's start the lecture. So before going to start the lecture, I just want to tell you the flow of the experiment. First of all, we'll understand the concept of the stack, then the implementation of the stack using array in C, then we'll understand the concept of queue, then implementation of queue using array in C, then we will understand the concept of circular queue, then the implementation of the circular queue using array in C, then we will understand the concept and the implementation of the structure. I hope that you have read structure in your previous semesters. Like I hope in first or second semester you had the structure in C language. Then we'll have a makeup session of the structure also. Don't worry about it. Then we'll understand the concept of linked list. Then the implementation of the stack, queue, and circular queue using linked list. So first of all, we'll see the implementation of stack queue and circular queue by using array, and then we will see the implementation of these things by using linked list. So let's begin. So first of all, we will see the theoretical part of the stack. So stack data structure. What do you mean by the stack data structure? Stack क्या होता है? So stack is a linear data structure which follows a particular order in which the operation is performed. तो stack एक linear data structure है जिसमें एक particular order में एक operation perform किया जाता है. वो order या तो LIFO होता है last in first out या फिर FILO होता है first in last out. वैसे oftenly we use LIFO in stack data structure, but FILO भी कर सकते हैं. तो अब ये last in first out क्या चीज है? We'll understand in the coming slides. So these are the basic three operations we'll be using in the stack data structure. First is the push, then pop, and then top. Push is used for adding the element in the stack, but if the stack is overflow, which means अगर stack full है तो overflow condition show करेगा. Pop का मतलब होता है remove an element, remove a item. Element में बोलूं, item बोलूं, or the variable बोलो, it is one of the same thing. So remove an item from the stack. But if the stack is empty, then the underflow condition. Items are popped in the reverse order in which they are used. So items are deleted. Pop operation basically deletion operation होता है जो कि reverse operation होगा जैसे कि push हुआ है. Fine. So top is returned to the top element of the stack. ठीक है. तो अभी आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले अपने को ये समझना होगा कि पुश का मतलब होता है ऐड, पॉप का मतलब होता है डिलीट, और टॉप का मतलब होता है टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक को शो करना. फाइन. लेकिन बट पुश की कंडीशन में सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा स्टैक फुल है कि नहीं है, क्योंकि अरे अगर हम लेना जा रहे हैं तो अरे की एक फिक्स साइज होगी. लेट सपोज अगर मैं 10 लेता हूँ अरे, तो अगर 10 एलिमेंट्स 10 आइटम्स ऑलरेडी अरे के अंदर होंगे तो दोबारा कोई नया आइटम उसके अंदर ऐड नहीं हो सकता. तो इट विल शो एन ओवरफ्लो कंडीशन. उसी तरीके से अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है, अगर उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसके अंदर से कोई भी एलिमेंट को आइटम को रिमूव नहीं किया जा सकता. सो इट विल शो एन अंडरफ्लो कंडीशन. सो दीज टू कंडीशंस वी हैव टू कीप इट इन माइंड, दैट विल बी यूज्ड इन द फ्यूचर. फाइन. तो ये आप लोगों ने देखा, ये स्टैक है. स्टैक का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल है. जैसे कि हम बुक्स रखते हैं, तो बुक्स अगर मैंने यूं रखी हुई है तो सबसे पहले ये टॉप पोजीशन हो गई. बुक्स को मैं ऐड करता चला जा रहा हूँ, ठीक है, और ये टॉप पोजीशन है. एडिशन का मतलब हो गया मैं पुश कर रहा हूँ, और जब मैं यहाँ से निकालूंगा इसको तो क्या होगा, पॉप ऑपरेशन. तो एडिशन मान लीजिए अगर ये मेरा फुल स्टैक है, मान लीजिए मेरे स्टैक की साइज इतनी है, अब अगर मैं इसके अंदर बुक ऐड करूंगा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये फुल है. उसी तरीके से अगर मैं इसमें से पॉप करना चाहता हूँ और इसमें से एक भी बुक नहीं है अभी स्टैक में, तो दैट मीन्स क्या होगा कि ये अभी एक भी जो स्टैक है, इट विल नॉट रिमूव एनी काइंड ऑफ आइटम बिकॉज इट इज इन अंडरफ्लो कंडीशन. Here are the practical applications of the data structure.
हम लोग इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स कन्वर्जन कर सकते हैं, ये अभी हम ट्री में पढ़ेंगे इन द कमिंग फ्यूचर इन डेटा स्ट्रक्चर्स। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा वी आर यूजिंग एडिटर्स लाइक फोटोशॉप, ठीक है, उसके अंदर हम रीडू या हम वर्ड फाइल पे काम करते हैं या किसी भी एमएस ऑफिस पे काम करते हैं तो उसके अंदर रीडू और अंडू होता है। सो दीज रीडू एंड अंडूज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द स्टैक। फाइन, तो उसके अंदर जब हम लास्ट रीडू करेंगे वही लास्ट अंडू उसका होगा। ऐसे ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड फीचर्स होते हैं वेब ब्राउजर के अंदर, और जो एल्गोरिथम्स हैं लाइक टावर ऑफ हेनॉय, ट्री ट्रैवर्सल या सुडोकू सॉल्वर जो होता है उसके अंदर भी स्टैक को काम में लाया जाता है। सो दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। Fine. So these are the two implementation ways using array and the linked list. So first of all, we will discuss the implementation of the stack using an array. So I hope कि by this अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टैक क्या चीज होती है। तो स्टैक एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें के एलिमेंट्स पुश होता है और पॉप होता है, और बेसिकली एक ऑर्डर में होता है ये, और उस ऑर्डर को हम बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो लास्ट में जो एलिमेंट या आइटम ऐड होगा स्टैक में वही पहले बाहर निकलेगा। तो इसके अंदर पहला जो ऑपरेशन होता है वो पुश ऑपरेशन होता है। पुश ऑपरेशन का मतलब होता है एडिंग एन आइटम टू एन स्टैक, ठीक है, बट इट विल चेक कि कहीं मेरा स्टैक फुल तो नहीं है। अगर मेरा स्टैक फुल होगा तो उसके अंदर कोई एलिमेंट ऐड नहीं हो सकता। उसी तरीके से पॉप ऑपरेशन में हम रिमूव करते हैं एलिमेंट को या आइटम को स्टैक में से, लेकिन उसमें भी हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी वेदर माई स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। Fine. So these are the basic concept of the data structure. I hope कि मेरा अब अपन लोगों का बेस बन चुका है. So now we can move forward for the implementation part. So in this session we will understand the code of stack using an array. First we have to create an array of the fixed size. ठीक है, सबसे पहले हम एक array बनाएंगे of the fixed size का, and then we implement stack into it. The size of an array is the maximum length of the stack. तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ स्टैक की साइज की, तो स्टैक की साइज हमेशा मैक्सिमम रहने वाली है। फाइन, तो हियर व्हाट वी हैव डन इज वी हैव इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, देन वी इंक्लूड हैश डिफाइन साइज 10. तो हियर हैश डिफाइन इज नथिंग बट द प्री प्रोसेसर्स। आई होप कि इन योर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जब भी आपके सी लैंग्वेज रही होगी आप लोगों ने प्री प्रोसेसर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो हैश डिफाइन साइज 10, इसका मतलब ये होगा जहां भी मैं साइज लूंगा वो किससे इसको रिप्लेस कर देगा, 10 से रिप्लेस कर देगा। आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने सेमीकोलन नहीं लगाया। सेमीकोलन हम यहाँ नहीं लगाएंगे, अगर हम यहाँ लगा देंगे तो ये स्टेटमेंट यहीं टर्मिनेट हो जाएगा। तो कभी भी प्री प्रोसेसर्स के बाद एंड ऑफ द स्टेटमेंट नहीं किया जाता है। उसके बाद मैंने एक इंट स्टैक बना दिया है, ठीक है, जो कि एक इंटीजर टाइप का होगा और उसकी साइज कितनी होगी, 10। तो यहाँ पे साइज 10 है तो मैंने यहाँ पे साइज 10 ले ली है। Now we will understand the operations. So first of all we have to create the variable with the name top. तो सबसे पहले मेरे को top create करना पड़ेगा। top variable जो होगा वो मेरे को ये शो करेगा कि मेरी top most position जो है stack में वो कौन सी, which is a non-negative number and will always be equal to the index of the topmost element present in the stack. ठीक है, it will be negative number if the stack is in underflow condition. तो हियर स्टूडेंट्स इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया, अभी इसके अंदर जो पहली लाइन लिख रही है वो ये लिख रही है कि जो टॉप है वो टॉप मोस्ट, जो टॉप वेरिएबल है मेरा एक तरह का वेरिएबल होगा, इंटीजर वेरिएबल होगा और ये टॉप मोस्ट पोजीशन को शो करेगा। फाइन, ठीक है, ये हमारे को समझ में आ गया। उसके बाद हम अरे के बारे में जानते हैं कि जो अरे का बेस एड्रेस होता है वो ऑलवेज भी 0, वो हमेशा 0 रहना चाहिए। तो अब अगर मेरे को अंडरफ्लो कंडीशन चेक करनी है स्टैक के अंदर तो मैं कैसे करूंगा, तो हम उसको किस तरीके से करेंगे, टॉप को हमें बनाना पड़ेगा इक्वल्स टू -1। ठीक है, आपके समझ में आया। बेसिकली टॉप हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर रहने वाला है। फाइन, लेकिन अंडरफ्लो कंडीशन के केस में सबसे पहले हमें उसको -1 करना पड़ेगा, क्योंकि -1 ये चेक करेगा वेदर इट इज इन अंडरफ्लो कंडीशन और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, टॉप को -1 करना पड़ेगा और उसके बाद मेरे को एक इफ स्टेटमेंट चला के पहले चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो टॉप है वो -1 है कि नहीं है, मतलब अंडरफ्लो कंडीशन है कि नहीं। अंडरफ्लो कंडीशन का मतलब कहीं मेरा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर स्टैक एम्प्टी हुआ तो मैं पॉप अप ऑपरेशन नहीं कर सकता। सो दिस इज माय अरे, दिस इज माय अरे और यहाँ पे मैंने टॉप इक्वल्स टू -1 कर दिया है।
और ये एक इंटीजर डेटा टाइप। फाइन, अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, पुश ऑपरेशन करना है। तो पुश ऑपरेशन के अंदर हमें तीन चीजें करनी है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है टॉप जो है मेरा नेगेटिव है कि नहीं है, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो उसको क्या करना है, इफ द टॉप इज नेगेटिव देन मेक इट इज 0 एंड पुट द वैल्यू इन द एलिमेंट हैविंग 0 इंडेक्स इन द स्टैक, ठीक है। स्टूडेंट्स हमें सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स से मतलब है, इसके अंदर हम क्या एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि जो हमारा टॉप है वो -1 है कि नहीं है। अगर वो -1 है दैट मीन्स कि वो एक अंडरफ्लो कंडीशन में है, दैट मीन्स के स्टैक के अंदर किसी भी तरह का कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन अब चूंकि मैं पुश ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, तो पुश ऑपरेशन का मतलब है कि मेरे को ऐड करना है एलिमेंट। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, टॉप को 0 बनाना पड़ेगा, विच मीन्स के जो मेरी टॉप मोस्ट लोकेशन होगी इस अरे में वो क्या हो जाएगी 0, और यही मुझे चाहिए क्योंकि अरे के अंदर जो बेस एड्रेस होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। और चूंकि अरे एम्प्टी है तो मेरा जो टॉप मोस्ट पोजीशन अभी क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। तो अब मैं क्या कर दूंगा, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। यहाँ पे मैंने 4 एलिमेंट ले लिया। उसके बाद मेरे को क्या करना है, टॉप वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देना है बाय 1। तो जैसे ही मैं टॉप को बाय 1 इंक्रीमेंट कर दूंगा तो मेरा नेक्स्ट पोजीशन जो आ जाएगी वो कौन सी शो करने लग जाएगी, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट प्लेस ऑफ द अरे, ठीक है। तो अभी मेरा 0 इंडेक्स था, अब मेरा 1 इंडेक्स। तो टोटली स्टूडेंट हम लोगों ने ये चीज इसमें समझी है कि हमें बेसिकली किस पे ध्यान देना है, इंडेक्स पे ध्यान देना है। एलिमेंट्स जो भी पुश होंगे वो पुश होंगे ही होंगे, लेकिन हमें क्या करना है, उसके इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना। फाइन, सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड। So here we are not concerned about what is after top variable because this is not part of the stack. इसके बाद जो क्या है, जो खाली एम्प्टी स्पेसेस है उसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी, हमें सिर्फ टॉप एलिमेंट के बारे में चिंता करनी है, टॉप वेरिएबल। सो दिस इज द पुश ऑपरेशन। ये फंक्शन है एक, उसकी वैल्यू जो है वो इंटीजर टाइप की होने वाली है, और ये किसी भी तरह का जो वॉइड मैंने यहाँ पे लिखा है दैट मीन्स के किसी भी तरह की वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। इफ टॉप इज लेस देन साइज -1 दैट मीन्स के वो -1 है, तो हमें क्या करना है, इफ टॉप लेस देन 0। तो सबसे पहले मैंने -1 की कंडीशन चेक करी। उसके बाद मैंने चेक किया कि ये यहाँ पे साइज -1 मतलब 10 की साइज है तो 9 तक ही चलेगा, तो 0 से लेके 9 तक चलना है। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करी। अगर अंडरफ्लो सही है तो मैंने क्या कर दिया, स्टैक 0 को 0 कर दिया और टॉप वेरिएबल को भी मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। फाइन, अगर ये -1 कंडीशन होती है, अगर ये कंडीशन नहीं है तो मुझे क्या करना है, सीधे टॉप +1 करना है वैल्यू को, और टॉप को क्या कर देना है +1। तो वैल्यू एक तरह का मेरा जो वैल्यू मैं इंसर्ट कराने वाला हूँ वो चीज, और या फिर मेरे को क्या करना है, स्टैक ओवरफ्लो। तो इसके अंदर 3 कंडीशन चलेंगी। सबसे पहली कंडीशन में ये चेक करना है कि 10 से ज्यादा एलिमेंट्स तो नहीं होगा। दूसरे में मेरे को चेक करना है -1 तो नहीं है, अगर वो -1 है तो दोनों को 0 कर देना है, और अगर वो -1 नहीं है तो मेरे को टॉप +1 में वैल्यू को इंसर्ट कराना है, ऐड कराना है, और टॉप ++ में वो फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा। फाइन, उसके बाद हम पॉप ऑपरेशन देखेंगे। पॉप ऑपरेशन के अंदर कुछ नहीं है, वी हैव टू मेक श्योर दैट स्टैक इज नॉट एम्प्टी, डिक्रीज द टॉप बाय 1 एंड रिटर्न द प्रीवियस टॉप मोस्ट एलिमेंट। फाइन, तो हमें अब क्या करना है, इसके अंदर डिक्रीमेंट करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया इंट पॉप इफ टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर जो मेरा टॉप है वो मेरा 0 से ग्रेटर है या इक्वल टू है तो ही उस कंडीशन में मेरे को करना है, क्योंकि 0 क्या हो गया, फर्स्ट इंडेक्स हो गया। तो मेरे को ये कंडीशन चेक करानी पड़ेगी सबसे पहले। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, जिस भी एलिमेंट जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसको मैं क्या करूंगा, पॉप कर दूंगा, और एन वो वेरिएबल होगा जिसके अंदर वो एलिमेंट स्टोर हो जाएगा, और टॉप को क्या कर दूंगा, मैं डिक्रीमेंट कर दूंगा, रिटर्न एन कर दूंगा, विच मीन्स के इट विल शो कि मैंने कौन से एलिमेंट को पॉप किया है। तो लेट सपोज अगर मैं 7, 5, 8 करता हूँ, तो अगर मैं 8 को पॉप करूंगा तो ये 8 को रिटर्न कर देगा, क्योंकि 8 मेरा टॉप मोस्ट एलिमेंट है। फाइन, सो ये कुछ और वेरिएबल्स हैं जो हमें चेक करने हैं। सबसे पहले टॉप है, एम्प्टी है, डिस्प्ले और मेन है। तो इस तरीके से हमें इस कंडीशन को चेक करना है। फाइन, ओके स्टूडेंट, सो दिस इज योर असाइनमेंट। आपको जो अभी है इम्प्लीमेंटेशन करना है, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है और इम्प्लीमेंट स्टैक करना है बाय यूजिंग द पॉइंटर। फाइन, तो एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है और पॉइंटर्स को यूज करके आपको करना है, मतलब मैलॉक फंक्शन को यूज करके आपको इस चीज को बनाना है।
So this will be your assignment.